تفصیلات میں سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں گے۔ قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ایندھن مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ، اشیاء خوردونوش اور روزمرہ ضروریات کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عوام نے حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے اور فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول مہنگا، مہنگائی کا نیا بوجھ، ایندھن کی قیمت بڑھی، روزمرہ اخراجات بھی بڑھ گئے۔ شہری حکومت سے ریلیف کے منتظر۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کے بعد شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جس کا براہ راست اثر گھریلو بجٹ پر ہو رہا ہے۔ یہ بڑا کم کرنے کو تو 1 روپے کم کرتے ہیں، بڑھانے کو تو 15 روپے کم کر دیتے ہیں۔ بسوں میں بھی جاتے تو 10 روپے کرایہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی 15 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے زندگی مشکل بنا رکھی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پائے اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ سمجھو پیٹرول بڑھ جاتا ہے، چینی آٹا بھی بڑھ جاتا ہے، غریب بندہ ہے ہی تباہ، غریب بندے کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ معیشت کے مختلف شعبوں میں بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس کا بوجھ بالآخر عام صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ رمشا اسماعیل، T21۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین خانزادہ محسود کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئل ٹینکرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ حکومت کی جانب سے آئل ٹینکرز کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے لیے مذاکرات کا اگلا دور 4 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ حکومت اور آئل ٹینکرز کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ متحرک، مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین خانزادہ محسود کا کہنا تھا کہ حکومت نے مطالبات پر مثبت پیش رفت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اس پہ ہمارے وفد چلے گئے تھے، ہمارے ساتھی چلے گئے تھے، سرفراز خان جدون تھا، اور اس کے علاوہ عنیف پانیزائی بھی تھا، اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا رئیس خان وہ بھی تھے، تو اور کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے 3-4 لوگ تھے، وہ لوگ چلے گئے، وہاں پہ میٹنگ ہوا، بڑے اچھے انداز میں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ حکام کے سامنے وائٹ آئل پائپ لائن میں ٹینکرز کا کوٹا 55% کرنے، فریٹ فارمولے پر نظر ثانی اور کمرشل لوڈنگ کی بندش سمیت دیگر مسائل اٹھائے گئے ہیں۔ وہاں پہ میٹنگ ہوا، بڑے اچھے انداز میں ہوا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھائی آپ کا جو حق ہے، جو ہم سے طے ہوا ہے، 55% آئل ٹینکر کو پائپ لائن سے کوٹا دیا جائے گا، اور 45% جو ہے اس پہ رکھا جائے گا، کیا نام ہے، اور پائپ لائن کو دیا جائے گا 45%۔ خانزادہ محسود کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور 4 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا، جہاں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا وفد حکومتی کمیٹی سے دوبارہ مذاکرات کرے گا۔ امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے ذریعے ٹینکرز مالکان کے دیرینہ مسائل کا قابل قبول حل نکالا جائے گا۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ کاوش میمن، T21۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ نے رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے پر قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن کمی کی صورت میں معمولی ریلیف ملتا ہے۔ ان کے مطابق بڑھتے اخراجات نے روزگار اور گھریلو بجٹ متاثر کیا ہے۔ جی بہت مشکلات ہیں، سواری کرایہ دیتی نہیں ہے ہمیں، روز بدن پٹرول بڑھتا ہی جا رہا ہے، سارا دن بس گھومتے رہتے ہیں، روزی نہیں بن رہی ہماری، پریشان ہیں۔ شام کو بچوں کو کیا کھلائے، بحث کرتی ہیں، کوئی بیٹھتا ہے اتر جاتی ہیں، بھی مہنگا ہے، اتنے کرایہ ہم نہیں دے سکتے۔ عوام بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، کرایہ وہی چل رہا ہے ہمارا جو چل رہا تھا، وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ مہنگائی نے ایک بار پھر عوام کا بوجھ بڑھا دیا۔ ایک ہفتے کے دوران گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، شہریوں کا گھریلو بجٹ متاثر ہونے لگا۔ دکانداروں کے مطابق عالمی سطح پر کشیدہ صورتحال کے باعث درآمدی لاگت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ روٹی پہلے ہی مہنگی تھی، اب سالن پکانا بھی آزمائش بن گیا۔ ملک میں مہنگائی کا سلسلہ جاری، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں نے بھی عوام کو پریشان کر دیا۔ صرف ایک ہفتے کے دوران کھلے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ مارکیٹ میں کھلا کوکنگ آئل جو ایک ہفتہ قبل 470 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا،
अब 510 रुपए फी लीटर या इससे जायद कीमत पर दस्तयाब है। खुले घी की कीमत 470 रुपए फी किलो से बढ़कर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दूसरी जानिब ब्रांडेड कंपनियों के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मसनूआत अब 580 रुपए से बढ़कर 620 रुपए फी लीटर या किलो तक फरोख्त की जा रही हैं, जिससे सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि घी और तेल रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफे से घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। रीज़न ये है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, अब बंदा पेट्रोल मैनेज करें या अपने घर का राशन मैनेज करें। अब नॉर्मल बंदे की सैलरी 40,000 रुपीज़ है, सही है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40,000 रुपये। अब 40,000 में बंदा पहले 10,000 का फ्यूल डालता था, अब वो फ्यूल जाने लग गया 20,000 रुपये का, 15,000 का फ्यूल जाने लग गया। घर का किराया उसका 22,000 20,000 रुपये, बचा क्या? राशन घी तेल, ऊपर से घी तेल इतना महंगा है। दुकानदार आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों को इजाफे की वजह करार दे रहे हैं। तो यही वजह है बुनियादी की जिसकी वजह से घी और तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। ब्रांडेड आप ले ले तो उसके ऊपर 40 रुपये केजी के ऊपर बढ़ चुकी है, और इसी तरह अगर बी क्वालिटी लोकल ले ले तो उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ चुके हैं पर केजी के ऊपर। तो आवाम के लिए तो पहले ही मुश्किलात बहुत सारी थी। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशियाए ज़रूरिया को सस्ता करने के लिए इकदाम करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किराया में भी इजाफे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बस ड्राइवर्स कहते हैं कि डीजल की बढ़ती कीमतें ने रोज़गार चलाना मुश्किल बना दिया, इसीलिए किरायों में 10% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। आवाम महंगाई के इस नए मुमकिना बोझ पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, बस ड्राइवर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया, 10% किराया बढ़ाने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी दबाव का शिकार है। बस ड्राइवर्स और मालिकान का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस किरायों में तकरीबन 10% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। बस ड्राइवर्स के मुताबिक सिर्फ डीजल ही नहीं बल्कि गाड़ियों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और दीगर अखराजात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मौजूदा किरायों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये है कि बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा, 10 से 15 रुपए या 20 रुपए, बस इतने ही। डीजल तो डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, सारा दारोमदार डीजल पे है। 5-5 रुपए करके 400 रुपए तक पहुंचा दिया इन्होंने। तो अब किराया बढ़ेगा तो आवाम नहीं देगी। डीजल देखें जितना कम होगा तो किराया भी कम हो, हम तो यही कहते हैं। बस ड्राइवर से कहना है कि अगर किराए में मुनासिब इजाफा ना किया गया तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि किरायों में इजाफे से महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट किरायों में मुमकिन इजाफे ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है, जबकि आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए मौसर इकदाम किए। नाजरीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तारीख रकम कर दी। 10 बरस तक मुसलसल वजारत आला के मसनद पर रहने वाले वो पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने इक़्तिदार में रहकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सिंध में तारीखी कारनामे सरअंजाम दिए। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। मेरी तब्दीली के जो बातें हैं ना, जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी। काबिलियत, शाइस्तगी और मुआशी मामलात पर गहरी दस्तरस। सिंध की सियासी तारीख में वजारत आला का नया रिकॉर्ड कायम। मुराद अली शाह मुसलसल 1 तिहाई मनसब पर फायज रहने वाले पहले वजीर आला बन गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2002 के आम इंतखाबात से अमली सियासत की इब्तदा की और आबाई हल्के से रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए। 2008 से लेकर अब तक इक्तदार के ऐवानों में 18 साल से विराजमान हैं। वो वजीर अब्बाशी और वजीर खजाना भी रहे। 30 जुलाई 2016 को पार्टी क़यादत ने सैयद कायम अली शाह की जगह पर मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद किया। 2018 के आम इंतखाबात के बाद एक बार फिर उन्हें वजारत आला के मसनद पर बिठाया गया और 2024 के आम इंतखाबात के बाद फरवरी 2024 में सैयद मुराद अली शाह वजीर आला मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह सियासत से कबल आलमी इदारों में मुलाजिमत के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। गुज़िश्ता 24 बरस से सिंध की सियासत और हुकूमत के एक नुमाया किरदार हैं। आजिज़ जमाली, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, हुकूमत सिंध और लीगल एड सोसाइटी की जानिब से मुकामी होटल में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन का कहना था कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आज जमाली की रिपोर्ट।
अमन, रवादारी और तहफ़्फ़ुज़ पुरअमन मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी। मकामी होटल में लीगल एड सोसाइटी और हुकूमत सिंध की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुनक़िदा सेमिनार से महकमा दाखिला के जिम्मेदारों, सिविल सोसाइटी, अक़लियतों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र की शख्सियात ने खिताब किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। सूबा सिंध से अब तक 3 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाला जा चुका है। ये सेंटर कोशिश करके वो पॉलिसीज़ लेके आने की कोशिश करेगा जिसको इम्प्लीमेंट करके हम ये चीज़ें जो पाकिस्तान में साथ अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आइंदा फ्यूचर में ये ना हो। ये पूरे पाकिस्तान में साथ के सेंटर्स बने हैं तो पूरे मुल्क के अंदर मजहबी रवादारी हो, हम आहंगी हो, मफामत हो, तारकीन वतन पाकिस्तान में उनको निकालने के लिए पॉलिसी मुरतब की गई थी। अब तक वो पॉलिसी ऑन गोइंग है और सिंध से आपको पता है कि तकरीबन 3 लाख के लगभग लोग निकाले जा चुके हैं। माहिरीन का कहना था कि मुआशरा और हुकूमत जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट और कम्युनिटी ने जब साथ काम किया तो उलमाए कराम को कोऑप्ट किया, वहाँ उनकी गही हुई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर निकाह नामे के टाइम पे अब बच्चियों का NIC लाजिम हो गया है कि आप पेश करें। तो गवर्नमेंट तो काम कर रही है कि नादरा के साथ इस चीज़ को किस तरह हम रोकें, लेकिन इस वक्त मैन्युअली वेरिफिकेशन का काम तो शुरू हो गया है। तो ये छोटी छोटी मिसाल मैंने आपको दी है जो दिखा रहा है कि कितनी ताकत है जब कम्युनिटी को आप एम्पावर करेंगे और जब हुकूमत अपने दरवाजे खोल के एक्सेसिबल होगी। लीगल एड सोसाइटी ने सिंध के तमाम अजला में हुकूमत के साथ मिलकर तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए पीस कमेटियां कायम कर ली हैं। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। उधर सिंध हुकूमत और अमरीकी वफ्द के दरमियान सूबे में सरमायाकारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अमरीकी सरमायाकारों को सहूलियात के लिए खुसूसी डेस्क कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमरीकी सरमायाकारों को सिंध की मुआशी तरक्की के सफ़र में तवीलुल मुद्दती शराकतदार बनने की दावत देते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि सिंध में शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और सरमायाकार दोस्त कारोबारी माहौल मौजूद है, जिसे हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत, पॉलिसीज़ का तसलसल और बैनुल अक़वामी मेयार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की पुष्टपनाही हासिल है। वज़ीर आला ने कहा कि सरमायाकारी में गैर ज़रूरी रुकावटों को मुसलसल ख़त्म किया जा रहा है। सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतज़र 19 ग्रेड के अफसर मोहम्मद यूसुफ शेख को डायरेक्टर नॉर्म्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात कर दिया। सैफुल्लाह अबड़ो से डायरेक्टर नॉर्म्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का इजाफी चार्ज वापस ले लिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्रुरी के मुंतज़र 19 ग्रेड के अफसर मोहम्मद यूसुफ शेख को डायरेक्टर नॉर्म्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर नॉर्म्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाफी चार्ज सैफुल्लाह अबड़ो से वापस ले लिया गया है। सैफुल्लाह अबड़ो मेंबर ऑर्डिनेंस एस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर विराजमान है। सूफी म्यूजिक हर दौर की पसंद। सिंध की नई सुरीली उभरती हुई आवाज़ निर्मला मेघानी कहती हैं, आज भी नौजवान सूफी और फोक मौसीकी को पसंद करते हैं। सूफी म्यूजिक हर दौर में मकबूल रहा है। नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन की तरह अपना मुकाम बनाना चाहती हूँ। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्मला मेघानी, जो कि सिंध की एक आवाज़ है, नौजवान आवाज़ है। निर्मला, क्या कहेंगी, क्योंकि आप ज़्यादातर सूफ़ी, फोक और इस तरह के गाने गाती हैं, तो कुछ नया गाना आने वाला है और ख़ास तौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो न्यू टैलेंट है, और वो कितना लाइक करता है सूफ़ी म्यूज़िक को, क्लासिक म्यूज़िक को, क्योंकि जेंजिस का दौर है, ज़्यादातर हिप हॉप है, तो ऐसे दौर में ये चीज़ें कितनी पसंद की जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो जेंजीज जो है वो मेरे ख्याल से आप ना वो एक इस जो है अभी गज़ल सुन रहे हैं, उनको ना एक मॉडर्न टाइप का जो है वो वैसे ऐसे नहीं कि नहीं सुन रहे, लेकिन हाँ अभी आप देखेंगे तो कहीं जो है गज़ल प्रोग्राम होते रहते हैं, वहाँ पे लाजमी आप उनको देखेंगे जो यंग हैं वो पसंद कर रहे हैं अभी गज़ल को। और मैं तो हर किस्म का जो है कोशिश करती हूँ, फोक भी गाती हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, लाइट क्लासिकल, सूफ़ी,
तो ये तो बिल्कुल जो सूफ़ी है यकीनी तौर पर एक गाना एक मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं, जिन्हें आप पसंद करती हैं, कौन सी इसमें? मैं कोशिश करती हूँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनती हूँ, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को सुनती हूँ, मैडम नूरजहां को सुनती हूँ, बस कोशिश करती हूँ इनको। सारे बड़े बड़े लोगों को आप सुनती हैं? लाब्दा परवीन जी को सुनती हूँ। निर्मला, कोई गुनगुनाना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए तो कौन सा ऐसा आपका कोई आने वाला गीत हो या जो आपका आ चुका हो, या किसी भी ऐसे सिंगर का जो आप गुनगुनाना चाहें? जी, मैं सूफी सुनाती हूँ आपको, तू झूम सुनाती हूँ। बिल्कुल, सामने देखिए। पीड़नू में सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबिया अपनी छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना है, सबनू समझ के की करना है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम। बहुत खूब हमारे साथ मौजूद थी निर्मला मेहगानी, और उनका कहना है कि जहाँ पर हिप हॉप पॉप पसंद किया जाता है वहीं पर क्लासिकी और सूफ़ी कलाम भी पसंद किया जाता है, और सूफ़ी कलाम हर दौर में पसंद किए जाते हैं। आबदा परवीन और मलका तरन्नुम नूरजहां उस्ताद नुसरत अली खान से इंस्पायर हैं और उन्हीं की तरह अपना एक नाम बनाना चाहती हैं। जी।